हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें सो दैट आगे के लिए अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम on my channel SSC All in One. So friends, as you must have visited my channel and you must have seen a chapter called CVP analysis in marginal costing. So now by way of this video I am continuing with that chapter only, and the second part of the chapter is marginal costing and decision making. So friends, as you must have heard about marginal cost, and marginal cost is nothing but it is the variable cost. So whenever we are going through marginal costing, then in that case we are only concerned with marginal cost. So next question is, as the title of the topic says marginal costing and decision making, what kind of the decision that are taken with the help of marginal costing? So one by one I am going to cover all the decisions with practical problems, that how this marginal costing is going to help us for decision making. So friends, if I talk about the very popular decision that is going to be taken with the help of marginal costing is product mix. What do you mean by product mix? That means if a company is facing shortage of any kind of input like raw material or labor hours or machine capacity or any other factor of production, then out of various product which it has in its product line, which of the product it must produce so as to maximize its profitability will be guided by the decision of product mix, which will be taken on the basis of marginal cost of the different product and their respective contribution. So popularly इस product mix को हम लोग की फैक्टर के नाम से भी जानते हैं. सो अगर मैं कहूँ की फैक्टर डिसीजन मुझे लेना है, सो ये भी कहना कुछ गलत नहीं होगा, बिकॉज की फैक्टर इज दैट रेलेवेंट फैक्टर और दैट इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्रोडक्शन विच इज restricting us from producing required level of the output. So first decision is product mix. So friends, next comes the decision of export, that is export order. So I will say whether I should export or not if I have additional capacity. For example, if I am utilizing only 70% of my capacity in India, so out of 100%, if I want to utilize balance 30% for the export, so whether I should make this export or not, that also be guided by my decision of marginal costing. And in that case I will decide what should be the minimum cost that should be loaded for this export so that I can sell my product internationally easily. So in other words, अगर मैं कहना चाहूँ तो एक्सपोर्ट ऑर्डर के केस में हम लोग एक मिनिमम सेलिंग प्राइस डिसाइड करने वाले होते हैं. कई बार एग्जाम में ये भी लिखा होता है व्हाट मिनिमम प्राइस शुड बी कोटेड फॉर एक्सपोर्ट. व्हाट मिनिमम प्राइस शुड बी कोटेड फॉर एक्सपोर्ट. सो एक्सपोर्ट ऑर्डर के डिसीजन के लिए भी कि मुझे एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मार्जिनल कॉस्टिंग मुझे बहुत हद तक हेल्प करने वाला है. क्योंकि एक्सपोर्ट के केस में जहाँ पर हमारे पास चाइना जैसे कॉम्पिटिटर हैं, सो
इन देयर केस हमें अपना प्राइस भी उनके कॉम्पिटिटिव रखना पड़ता है ताकि हम फॉरेन मार्केट में सर्वाइव कर सकें। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ हम देखेंगे किस तरह से हम एक्सपोर्ट ऑर्डर की मिनिमम प्राइस डिसाइड करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड डिसीजन आता है दैट इज कॉल्ड वेदर टू मेक और टू बाय। वेदर टू मेक और टू बाय। फ्रेंड्स, इस डिसीजन में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट का पर्टिकुलर कंपोनेंट खुद बनाना चाहिए या फिर बाहर से उसे हम लोग ऑर्डर करके खरीद लें सो दैट कि कंप्लीट प्रोडक्ट हम लोग असेंबल करके बेच सकें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस पेन की, सो इस पेन का ये जो कैप है, एक तरीका क्या है, इस पूरी बॉडी रिफिल प्लस ये कैप हम लोग खुद बनाएं, और या फिर ये कर सकते हैं कि ये बॉडी जिसमें कि जिस पार्ट को आप देख पा रहे हैं इस टाइम स्क्रीन पर, ये पेन प्लस रिफिल हम लोग खुद बना लें और इस कैप वाले पार्ट को हम लोग बाहर से खरीद लें। तो सवाल ये उठता है, क्या मेरी कॉस्ट जो कि मैं इनकर करने वाला हूँ इसको बनाने में, अगर मुझे बाहर से उस कॉस्ट से ये कम प्राइस पे मिल जाता है तो डेफिनेटली मुझे इस ढक्कन को बाहर से खरीद लेना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इसको प्रोड्यूस करने के। सो whenever we are going to decide whether a part of the product should be purchased from outside or it should be made by us, we are guided by the decision of make or buy। एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, मेक और बाय का जब भी हम डिसीजन लेते हैं, ये डिसीजन हम लोग कंपोनेंट के लिए लेते हैं। एक प्रोडक्ट के हम कंप्लीट प्रोडक्ट की बाहर से पूरे कंप्लीट प्रोडक्ट को खरीदने की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि हम बेच रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट लाइन में उसके एक पार्ट को हम लोग खरीदें या फिर खुद बना लें। जब हम कंप्लीट प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे देन वी आर टॉकिंग अबाउट आउटसोर्सिंग द प्रोडक्शन, यानी कि हम पूरी की पूरी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को आउटसोर्स कर देंगे और फिर उसके बाद जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आता है बाहर से मैन्युफैक्चर होके उस पर हम अपना लेबल लगा के प्लस अपना जितने का हमने बाहर से बनवाया उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके उस पर अपनी लेबलिंग करके हम लोग इसे बेच दें। तो जब भी हम एक कंप्लीट प्रोडक्ट को बेचने की बाहर से बनवाकर बेचने की बात करेंगे तो वो आउटसोर्सिंग का डिसीजन होगा। वेयर एज जब भी हम मेक और बाय की बात करते हैं इट इज़ ऑलवेज इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मोबाइल अगर है तो मोबाइल के डिस्प्ले को, अगर मैं एक मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मोबाइल के एक डिस्प्ले को मैं बाहर से बनवाऊं या खुद मैन्युफैक्चर करूं सो दैट कि कंप्लीट मोबाइल तैयार हो सके, जहां पर कि मैं पहले ऑलरेडी पूरा मोबाइल बनाता हूं बट ड्यू टू सम प्रोडक्शन जो मेरी फैसिलिटीज़ हैं उसकी रिस्ट्रिक्शन है या कॉस्ट की रिस्ट्रिक्शन है और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको क्यों ना बाहर से बनवा लूँ अगर ये मुझे सस्ता पड़ता है। तो मैं ये बेसिकली एग्जांपल आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेक और बाय का डिसीजन केवल हम लोग कंपोनेंट के लिए लेते हैं। आइए नेक्स्ट मेरा डिसीजन आता है कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट। जब हम लोग डिफरेंशियल कॉस्ट की बात कर रहे होते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट के केस में हम लोग एक प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी बना रहे हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट, यहाँ पर हम लोग एक प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए बेसिकली हम लोग अपनी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर रहे। दैट मीन्स मैं अपनी कैपेसिटी, पार्ट कैपेसिटी कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो उस पार्ट कैपेसिटी को मुझे यूटिलाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो डिपेंड करेगा उस पार्ट कैपेसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को जो मार्जिनल कॉस्ट इनकर हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो रही है, वो कितनी पड़ रही है। सो दिस डिसीजन मेकिंग इज गोइंग टू हेल्प अस in calculating differential cost of the part of the capacity that is not being utilized by us but in future we are planning to utilize it. So whether to utilize that capacity or not, what will be the differential cost of additional production, that will be decided by this marginal costing. Friends, next comes shutdown or continue. As all of you know, nowadays in case of
this COVID, there is worldwide lockdown, and not only in India, other countries are also suffering from this COVID-19. So now question arises whether I should completely shut down my operations or I should continue with some minimum operations. क्योंकि इस टाइम पर मेरे पास लेबर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लेबर सारी की सारी जा चुकी है अपने घर लॉकडाउन के डर से। तो सवाल ये उठता है, मान लीजिए मैं उस इंडस्ट्री में हूँ जहाँ पर कि थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करना अलाउड है, तो क्या मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या फिर मुझे बिल्कुल ताला लगा के चला जाना चाहिए और उसके बाद फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं इसको ओपन करूँगा, और या फिर मुझे कुछ मिनिमम परसेंटेज के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। तो दिस विल ऑल्सो बी गाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट। किस तरह से गाइड करेगा ये लोग, ये चीज़ मैं आपके साथ एक सेपरेट प्रॉब्लम के साथ डिसाइड करूँगा कि देखिए किस तरह से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें शट डाउन करना चाहिए या फिर थोड़े से ऑपरेशंस के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। देन नेक्स्ट डिसीजन कम्स, जिसे हम कहते हैं ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सीखा हुआ है, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना हो, this marginal costing is also going to help me whether a particular level of the output of different products will allow me to break even or not. जब आप CVP एनालिसिस का जो मेरा वीडियो बना हुआ है वहाँ पर जो ब्रेक इवन की बात मैंने की है वो मैंने सिंगल प्रोडक्ट की है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग से हम लोग ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पर कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उनका अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है और इस डिसीजन को हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। डिसकंटिन्यूएंस discontinue a existing product line। discontinue a existing product line। मैं यहाँ पर वेरियस प्रोडक्ट तैयार कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोडक्ट ए तैयार किया, प्रोडक्ट बी तैयार किया, प्रोडक्ट सी तैयार किया, प्रोडक्ट डी तैयार किया। नाउ आउट ऑफ दीज 4 प्रोडक्ट्स it may appear to me that A product is less profitable, B and C और D are profitable। तो क्या मुझे A की प्रोडक्शन को ऑल टुगेदर बंद कर देना चाहिए या फिर मुझे इसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए? ये डिसीजन लेते हुए भी मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगेन वी विल लर्न थ्रू अ practical problem that how this marginal costing is going to help us in deciding whether a particular product A, B और C और D should be discontinued। For example, आप लोगों को पता है मारुति पहले बहुत सारे अपनी कार डिफरेंट वेरिएंट की कार बनाती थी, जैसे मारुति 800, मारुति एस्टीम, ऑल्टो, वैगनार। और आपने देखा होगा मारुति 800 ऑल टुगेदर मार्केट से डिसकंटिन्यू हो चुकी है, मारुति एस्टीम मार्केट से ऑल टुगेदर डिसअपियर हो चुकी है। तो सवाल ये उठा, ये जो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू किए गए इनको किस बेस पे किया गया, इनके पीछे क्या आधार था? तो ये डिसाइड करने के लिए भी मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी बहुत बड़ी हेल्प करता है। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
इज द डिसीजन ऑफ कॉस्ट ब्रेक इवन। ये कॉस्ट ब्रेक इवन क्या होता है, यहाँ पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं, देखिएगा कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट में हम लोग ये डिसाइड करते हैं, अगर मेरे पास दो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो मशीन है, तो मुझे कौन सी मशीन से आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए, वेदर इट शुड बी प्रोड्यूस थ्रू मशीन ए और इट शुड बी प्रोड्यूस थ्रू मशीन बी, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हैं। सो ये डिसाइड करने के लिए कि मेरे को प्रोडक्शन ए से करना चाहिए या फिर प्रोडक्ट मशीन बी से करना चाहिए, या फिर एक पर्टिकुलर लेवल तक मशीन ए यूज़ करनी चाहिए या फिर एक पर्टिकुलर लेवल के बाद मशीन बी यूज़ करनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो टू बी गाइडेड बाय दिस मार्जिनल कॉस्टिंग। So if I summarize through what I have written on the screen as is visible to you, first decision, second decision, third decision, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth, ये 8 तरह के डिसीजन है जो हम मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू लेते हैं। फिर मैं कहना चाहूँगा ये केवल मेरी तरफ से एक छोटी सी इलस्ट्रेटिव लिस्ट है जो कि मैं 8 डिसीजन की बात कर रहा हूँ। ऑल्दो मार्जिनल कॉस्टिंग हमें, अगर आप प्रोडक्शन में हैं या फिर सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो आपको इससे भी कहीं ज़्यादा मल्टीपल डिसीजन लेने में हेल्प करती है। बट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर कि हमारे पास अगर हम अपियर कर रहे हैं बीकॉम पास के एग्ज़ाम में या फिर बीकॉम ऑनर्स के एग्ज़ाम में, या फिर आप सीए इंटर या फिर जिसको हम पहले आईपीसीसी कहते थे इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप सीए फाइनल के एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हैं, और या फिर आप एमकॉम का और एमबीए का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग में जो डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है, इसका कहीं ना कहीं कोर्स करिकुलम में रोल होता है। और इसकी डीप नॉलेज के लिए मैं आपसे कहूँगा, सबसे पहले आप सीवीपी एनालिसिस का जो हमारा वीडियो है उसको ज़रूर देखें, एक बार उसको देख लें और फिर आप आगे डिसीजन मेकिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं सेपरेटली एक एक डिसीजन शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में जो हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं या मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली कंप्राइज ऑफ 3 थिंग्स। One is the material cost, another is the labor cost, and then we have variable overheads. इनको अगर मैं A मटेरियल को कहूँ, B लेबर को कहूँ, तो C मेरा वेरिएबल ओवरहेड। सो मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट A प्लस B प्लस C। और यहाँ पर अगर मैं A को छोड़ दूँ जो कि मेरे मटेरियल कॉस्ट है, B और C को हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ रॉ प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। सो ये मार्जिनल कॉस्ट जिसमें कि मेरे पास वेरिएबल मटेरियल कॉस्ट, वेरिएबल लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, इनके बेस पे हम लोग ये डिसीजन लेने जा रहे हैं कि हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाना चाहिए और उससे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। जहाँ पर कि मेरे पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं बट मेरे पास इनपुट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मुझे मैक्सिमम आउटपुट तैयार करने से। मुझे एक्सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे खुद बनाना चाहिए या बाहर से खरीद लेना चाहिए, मुझे अभी शट डाउन कर देना चाहिए या फिर थोड़े ऑपरेशन के साथ अभी कंटिन्यू करना चाहिए। 2 मशीनें यूज़ कर रहा हूँ, उनमें से कौन सी मशीन कितने लेवल तक मुझे बेनिफिशियल रहेगी। अगर मेरे पास एडिशनल कैपेसिटी है तो उस कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करने की क्या कॉस्ट पड़ेगी। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उसको मुझे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ओवरऑल अगर मैं एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो कितने पे मेरा ब्रेक इवन आएगा। ये डिसीजन लेने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ ऑफ इमेंस यूज़ और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो फ्रेंड्स,
मैं आगे कंटिन्यू करूंगा आपके साथ एक एक डिसीजन के साथ, जिसमें सबसे पहले मैं लूंगा प्रोडक्ट मिक्स और की फैक्टर। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिसीजन विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स, और या फिर इसको हम पॉपुलरली की फैक्टर भी कहते हैं। इसे की फैक्टर क्यों कहा जाता है या प्रोडक्ट मिक्स, मैंने ब्रैकेट में की फैक्टर लिखा है। इट मीन्स मुझे प्रोडक्ट की मिक्सिंग कुछ इस तरह से करनी है, या जो प्रोडक्ट मैं सेल करने जा रहा हूँ उनको कुछ इस तरह से सेल करना है कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, एंड हैविंग रिगार्ड टू द की फैक्टर। व्हाट इज़ की फैक्टर? इट इज़ दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच रिस्ट्रिक्ट मी फ्रॉम प्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर रॉ मटेरियल के बारे में बता रहा है कि रॉ मटेरियल इज़ 3 लाख kgs, यानी कि रॉ मटेरियल यहाँ पर मेरे पास लिमिटेड है, इससे ज़्यादा मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पर मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के को ब्रीफ करने जा रहा हूँ। यहाँ पर 3 प्रोडक्ट हैं XYZ जो कि कंपनी बना रही है। X को बनाने के लिए 8 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 6 लेबर आर रिक्वायर्ड। Y को बनाने के लिए 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 5 लेबर आर रिक्वायर्ड। जबकि 1 यूनिट ऑफ Z को बनाने के लिए 12.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 8 लेबर आर रिक्वायर्ड। फिर नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है इनकी सेलिंग प्राइस X की, Y की, Z की। मटेरियल कॉस्ट बता रहा है 3.50 पर kg एंड लेबर रेट 4 रुपीज़ पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड 3 रुपीज़ पर आवर बता रहा है, और अदर वेरिएबल एक्सपेंस 7 रुपीज़ पर यूनिट्स। कमीशन बता रहा है 10% ऑन सेल। और मैक्सिमम डिमांड, यानी कि मैक्सिमम जो हम मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकते हैं, X 7,000 यूनिट, Y 10,000 यूनिट, और Z को आप मैक्सिमम 45,000 यूनिट बेच सकते हैं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है और बताता है हमें मटेरियल लिमिटेड है, तो यहाँ पर जो मैं फर्स्ट प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, यहाँ पर की फैक्टर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, की फैक्टर क्वांटिटी है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, जिस फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग प्रोडक्ट मिक्स सीख रहे हैं, और यहाँ पर मैं 3 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं हमारे पास, 2 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स। और वेरिएबल के अंदर भी मेरे पास 3 होते हैं, एक मटेरियल, एक लेबर और एक ओवरहेड। सो मेरा अगर मटेरियल लिमिटेड है और मटेरियल मुझे, यानी कि इनपुट जिसे मैं कहूँगा, अगर ये लिमिटेड है और ये मुझे रिक्वायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने से, जो कि मेरी मैक्सिमम डिमांड है, ये मुझे प्रोड्यूस करने से रेस्ट्रिक्ट इस टाइम पे कर रहा है, तो मैं इसे कहूँगा कि मेरे इस क्वेश्चन में जो की फैक्टर है वो रॉ मटेरियल है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले ये डिसाइड करना कि कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होगा, सो दैट मेरा ये 3 लाख रॉ मटेरियल भी यूज़ हो जाए और मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट भी आ जाए। तो इसके लिए जो मैं तरीका यूज़ करने वाला हूँ उसे हम कहते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाना। सो सबसे पहले मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग से मैं ये डिसाइड करूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, एंड देन आई विल प्रोसीड दैट what quantity should be produced and what will be the total profit. So let's start. सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। ये कैसे बनेगी? देखते हैं। यहाँ पर पहले हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स, देन मेरे पास प्रोडक्ट X, प्रोडक्ट Y और प्रोडक्ट Z है। अब मुझे जो प्रोडक्शन करनी है वो कुछ इस तरह से करनी है कि 3 लाख यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल मेरा पूरा यूज है और प्रॉफिट मुझे मैक्सिमम हो, और वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जिससे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये सब डिसाइड करने के लिए ये हमारी जो स्टेटमेंट बनी है, इसको मैंने आपसे कहा था, इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। आइए देखते हैं ये कैसे बन रही है। यहाँ पर सबसे पहले मुझे लेना होगा तीनों प्रोडक्ट का इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जो कि मुझे गिवन है। फर्स्ट प्रोडक्ट का 300, सेकंड प्रोडक्ट का 500 और थर्ड प्रोडक्ट का 420।
देन मटेरियल कॉस्ट बता रखे 3.5 पर केजी लेबर, इसको हम थोड़ी देर बाद में यूज़ करेंगे। आइए इसमें से लेस करते हैं एक एक करके, लेस वेरिएबल कॉस्ट। सो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट हैं, अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ पर सबसे पहले मटेरियल, मटेरियल के बाद मेरे पास है लेबर, और लेबर के बाद मेरे पास है वेरिएबल कॉस्ट के फॉर्म में ओवरहेड्स, और ओवरहेड के बाद भी एक चीज़ और बता रहा है, वो बता रहा है हमें कमीशन विच इज़ 10% ऑफ दी सेल। तो आइए पहले एक एक करके इनके साथ डील करते हैं और फिर किस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा वो देखते हैं। सो वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले मेरे पास आएगा मटेरियल, मटेरियल के बाद लेबर, देन वेरिएबल ओवरहेड एंड देन कमीशन। अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ये कहता है फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ एक्स 8 kg ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड। आपको क्वेश्चन अगर रेफ़र करना हो तो मैं इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में नीचे इसके डिटेल में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा PDF फॉर्म में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन को, एंड देन आप इस सॉल्यूशन के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। मटेरियल 8 kg है और 1 kg जो मटेरियल की कॉस्ट है वो 3.50 पर kg है। तो दैट मीन्स अगर x को बनाने के लिए 8 kg रॉ मटेरियल चाहिए और 3 रुपीज़ 50 पैसा पर kg इसकी कॉस्ट है, तो ये जो मटेरियल पड़ेगा हमें, ये पड़ेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 3.50, दैट इज़ 28 रुपीज़ का इन केस ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट बी में कहता है 10 kg मटेरियल चाहिए 3.5, तो ये हो जाएगा 35, और प्रोडक्ट सी के लिए आपको चाहिए 12.5 kg, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 12.50 मल्टीप्लाई बाय 3.50, so this comes out to be 43.75। सो नेक्स्ट हमारी आती है लेबर कॉस्ट, और लेबर कॉस्ट के बारे में बता रहा है लेबर रेट इज़ 4 पर आवर, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लेबर आर फर्स्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए 6 लेबर आर चाहिए, और 4 रुपीज़ के रेट से 6 × 4 हो जाएगा हमारे पास 24। फिर आप देखेंगे वाई के लिए, वाई के लिए कहता है 5 लेबर आर, और एक लेबर आर की कॉस्ट है 4 रुपीज़, 5 4 जा 20, और इसी तरह से ये z के लिए बताता है 8 आर, 8 4 जा 32। ये हमारा 300 रुपीज़, ये 500 रुपीज़, और ये 420। देन वेरिएबल ओवरहेड के बारे में अगर हम नीचे पढ़ते हैं तो ये बताता है वेरिएबल ओवरहेड आर 3 पर आवर, 3 रुपये पर आवर। फर्स्ट प्रोडक्ट में 6 लेबर आर लगते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी लेबर आर के वेरिएबल ओवरहेड के लिए, तो हम ये मान के चलते हैं लेबर आर के साथ ये वेरी करेंगे। तो 3 × 6 इट इज़ 18। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट बी की, तो प्रोडक्ट बी के केस में ये कह रहा है, प्रोडक्ट वाई के केस में ये बोल रहा है वाई 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 5 लेबर आवर्स, तो 3 रुपीज़ पर लेबर आवर, तो 3 × 5 15, और z के केस में ये कहता है 8 लेबर आवर्स, तो 3 8 जा 24। इसके साथ में कुछ ये कमीशन की भी बात कर रहा है। अगर हम देखते हैं तो कहता है 10% ऑफ द सेल, तो फर्स्ट प्रोडक्ट के केस में 30 रुपीज़, सेकेंड प्रोडक्ट के केस में 50 रुपीज़, और थर्ड प्रोडक्ट के केस में 42 रुपीज़। सो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सेलिंग प्राइस, ये वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे सारे प्रोडक्ट्स का। आपके पास कंट्रीब्यूशन जो बचेगा प्रोडक्ट एक्स का, दैट विल बी 200, वाई का होगा 380, और जेड का होगा 278.25। इसके बाद मुझे निकालना है नेक्स्ट स्टेप कंट्रीब्यूशन पर केजी, क्योंकि इस कंट्रीब्यूशन पर केजी के बेस पर ही मैं रैंकिंग करने वाला हूँ। कंट्रीब्यूशन पर केजी कैसे निकलेगा? फर्स्ट प्रोडक्ट कहता है 8 kg चाहिए इसको प्रोड्यूस करने के लिए, ये मैं निकालने जा रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पर आएगा कंट्रीब्यूशन पर केजी। एक और लाइन यहाँ होनी चाहिए थी, रिक्वायर्ड मटेरियल, यानी कि 1 यूनिट को बनाने के लिए कितना मटेरियल की ज़रूरत है। अगर प्रोडक्ट एक्स की बात करें तो 8 kg, प्रोडक्ट वाई की बात करें तो 10 kg, और प्रोडक्ट जेड की बात करें तो 12.50 kg ऑफ रॉ मटेरियल। कंट्रीब्यूशन पर केजी का मतलब 1 किलो से कितना कंट्रीब्यूशन आया, यहाँ आया 200 / 8,
अगर हम ये निकालते हैं तो दिस विल कम आउट टू बी 25। दूसरे केस में 380 डिवाइड बाय 10, सो ये आता है 38 एंड देन 278.25 डिवाइड बाय 12.50, ये आ रहा है 22.26। सो दैट मीन्स ये इनका कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट वाई का है, तो इसको हम लोग अब रैंकिंग करेंगे इनकी। सो आइए इनको रैंक करते हैं। तो जब हम इनको रैंक देने चलते हैं तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट वाई का है, तो इसको रैंक 1 यानी कि सबसे पहले प्रोडक्ट वाई प्रोड्यूस होगा। देन आपका एक्स है, एक्स को हम देंगे रैंक 2, और इसके बाद फिर हमारा जेड, और जेड को लिखेंगे हम रैंक 3। तो इस तरह से हमने ये डिसाइड कर लिया कि सबसे पहले वाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, फिर जेड प्रोडक्ट फिर एक्स प्रोड्यूस होगा, और फिर जेड। आइए जरा सा एक छोटी सी कैलकुलेशन और करके लिख लेते हैं साइड पे, जो कि हमें आगे फर्दर क्वेश्चन में हेल्प करेगी। और वो क्या है, ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि पहले बनेगा प्रोडक्ट वाई, देन एक्स एंड देन जेड, लेकिन कितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे अभी ये डिसाइड करना बाकी है। तो आगे की कैलकुलेशन में हम लोग यही डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमम डिमांड। अगर मैं देख पाऊँ तो मैक्सिमम डिमांड वाई की 10,000 है, और एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए वाई का 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ होने वाला है। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ साइड पे लिखता हूँ रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, आइए एक आगे इसको शुरू करते हैं रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट के साथ। जैसा कि हमने देखा था प्रोडक्ट वाई की जो रैंक थी वो 1 थी, यानी कि सबसे पहले प्रोडक्ट वाई प्रोड्यूस होगा जिसका रैंक 1 था, फिर इसके बाद प्रोडक्ट एक्स प्रोड्यूस होगा जिसका रैंक 2 था, एंड देन जेड प्रोड्यूस होगा जिसका रैंक 3 था। आइए ज़रा देखते हैं, अगर वाई प्रोडक्ट का रैंक 1 है तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा रेफ़र करें, तो वाई प्रोडक्ट की मैक्सिमम डिमांड 10,000 है और एक्स की 7,000। थोड़ा सा इसी को हमें ध्यान में रख के चलना है। तो सो वाई के मैक्सिमम 10,000 यूनिट की डिमांड और एक्स के 7,000 की। हमने टेबल में देखा था वाई को बनाने के लिए 10 kg इनपुट चाहिए 1 यूनिट, और एक्स को बनाने के लिए 8 kg चाहिए। यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल यूज़ हो गया 1 लाख kg, इधर हमारा रॉ मटेरियल यूज़ हो गया 56,000 kg, और मेरे पास टोटल रॉ मटेरियल 3 लाख kg अवेलेबल है, जो कि मुझे क्वेश्चन बताता है। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं मटेरियल अवेलेबल इज़ 3 लाख kg। सो यहाँ पर 3 लाख 1,56,000 ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो 3 लाख minus 1,56,000, so this will come out to be 1,44,000। और 1,44,000 से कितने यूनिट ऑफ जेड बनेंगे, क्योंकि एक यूनिट ऑफ जेड बनाने के लिए मुझे 12.5 kg का रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। सो 1,44,000 डिवाइड बाई 12.5 मेरे 11,520 यूनिट बन पाएंगे। तो थोड़ा सा आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है, और इस बैलेंसिंग फिगर के बेस पे मैंने ये कैलकुलेट किया है। कैसे? 1,44,000 जो कि बच गया प्रोडक्ट जेड के लिए, इसको मैंने 12.5 से डिवाइड किया। सो 1,44,000 डिवाइड बाय, अगर आप करते हैं 12.5, सो दिस विल कम आउट टू 11,520 यूनिट्स। सो हमने ये डिसाइड कर लिया एक्स की 10,000, सॉरी एक्स की 7,000, वाई की 10,000 और जेड की 11,520 यूनिट प्रोड्यूस होंगी। किसकी हेल्प से? स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग की हेल्प से। आइए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी निकालना, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि की फैक्टर, यानी कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग में सीख रहे हैं डिसीजन मेकिंग और प्रोडक्ट मिक्स। हम एक ऐसा प्रोडक्ट मिक्स तैयार करने वाले हैं, ऐसा सेल का ऑप्शन देने वाले हैं जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और वो हमारा क्या निकल के आ गया? वो हमारा ये निकल के आया, क्या चीज़, कि आप x को 7,000, y को 10 और z को 11,520 यूनिट्स बेचें।
तो आइए देखते हैं। एक टेबल बनेगी आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ बनाते हुए फिर मुझे कॉलम बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट कॉलम मेरा बनेगा पर्टिकुलर्स, और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैनेजमेंट चाहता है उसके पास डिटेल्ड एनालिसिस हो। इसको शॉर्टकट भी बताऊंगा यहाँ से आगे सॉल्व करने के लिए, बट पहले मैं डिटेल वाला ऑप्शन चूज़ करके चल रहा हूँ, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ, पर्टिकुलर्स। देन आई हैव प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड, और एक हम कॉलम बनाएंगे टोटल का। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले मेरे को लेना है सेल्स। यहाँ आप डिसाइड कर चुके हैं एक्स 7000 यूनिट सेल होगा, तो 7000 यूनिट्स एक बार लिख दें तो बेटर रहेगा। 10,000 यूनिट्स, कन्फ्यूजन दूर हो जाती है, और 11,520 यूनिट्स। यहाँ टोटल कॉलम को बेशक आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे हमें इसे कंटिन्यू करना होगा। यहाँ पर भी आप एक एक लाइन लगा दीजिए, एंड देन बेटर है अगर 2 लाइन लगा दें। इसके बाद आप लिखेंगे सेल्स इन रुपीज़। सो फ्रेंड्स, अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ तो सेलिंग प्राइस मेरा प्रोडक्ट एक्स का 300 है, इसका 500 और इसका 420 है। 300, 500 और 420। तो आइए देखते हैं फिर आगे कैसे चलेंगे। 300 इंटू 7000, सो ये कैलकुलेशन आएगी आपकी 21 लाख। देन 10,000 इंटू 500, तो अराउंड ये आएगा आपका 50 लाख। एंड देन आपका जेड प्रोडक्ट 11,520 इंटू 420, सो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 4838,400। इसका हम टोटल भी लगा लेते हैं एक बार। 4838,400 प्लस 50 लाख प्लस 21 लाख, so this would come out to be 1,19,38,400। ये आपकी फिगर्स तैयार हो जाएंगे आपके पास। सेल में से आइए लेस करते हैं फिर वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले हमने लेस करना है इसमें से मटेरियल के बाद फिर लेबर, ओवरहेड्स जो कि हमारे वेरिएबल हैं, एंड देन कमीशन, और कमीशन के बाद एक फिक्स कॉस्ट और लेस होगी। मटेरियल कॉस्ट आएगी हमारी 28 रुपीज़ पर यूनिट थी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग में 28, सेकंड प्रोडक्ट के केस में 35 और थर्ड प्रोडक्ट के केस में 43.75। आइए देखते हैं। फर्स्ट केस का 28 और 28 मल्टीप्लाई बाय 7000 आप करेंगे। 28 मल्टीप्लाई बाय 7000, यह आपका आ जाएगा 1,96,000। इसी तरह से सेकंड प्रोडक्ट का 35 रुपीज़ पर यूनिट है और 10,000 यूनिट है हमारे पास, तो दिस विल कम आउट टू बी 3,50,000। लास्ट प्रोडक्ट 11,520 मल्टीप्लाई बाय 43.75, so this will come out to be 5,04,000। 350, 1,96,000। आइए टोटल लगा लेते हैं इसके साथ साथ। 3,50,000 प्लस 1,96,000, सो ये हो जाएगा 10,50,000। देन लेबर को अगर हम देखें तो लेबर के बारे में भी हमने स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग में देखा था। लेबर हमारे पास 24, 20 और 32 है पर यूनिट। तो 24 मल्टीप्लाई बाय जितने यूनिट फर्स्ट प्रोडक्ट की हम मैन्युफैक्चर करें 7,000 है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 7,000 मल्टीप्लाई बाय 24, दिस विल कम आउट टू बी 1,68,000। प्रोडक्ट बी के केस में हमारे पास है लेबर 20 रुपीज़ पर यूनिट, तो 20 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 10,000, दिस विल कम आउट टू बी 2 लाख।
थर्ड प्रोडक्ट के केस में हमारे पास 32 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 32 मल्टीप्लाई बाय हमने 11,520 यूनिट तैयार किए हैं, तो ये हो जाएगा 368,640 368,640। ओवरहेड हमारे पास 18, 15 और 24 है, तो ओवरहेड फर्स्ट प्रोडक्ट के केस में आ जाएंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 7,000 1,26,000। दूसरे प्रोडक्ट के केस में 15 है, 15 मल्टीप्लाई बाय 10,000 करेंगे आप तो 1,50,000। और लास्ट प्रोडक्ट के केस में 24 रुपीज़ हैं और हमारी यूनिट है 11,520 मल्टीप्लाई बाय 24, सो ये 276,480 276,480। एक बार फिर देख लेते हैं, 11,520 multiply by 24, so this is coming out to be 276,480. then commission 10% of the sale, so 21 लाख का 10% सीधे हम कर सकते हैं 2,10,000। 50 लाख का 10% यहाँ पे 5 लाख, और यहाँ पर है 4838,400, तो ये आ जाएगा आपका 483840। सो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन। इनका हम लोग टोटल लगा लेंगे, 1,68,000 प्लस 2 लाख और प्लस 368,640, सो 736,640 736,640, देन 1,26,000 1,50,000 plus 276,480 5,52,480, and then 2,10,000 plus 5 lakh plus 5 lakh or plus 4,83,840. so this will become, एक बार फिर देख लेते हैं, 2,10,000 प्लस 5 लाख प्लस 4,83,840, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 119,3840 119,3840। सो फ्रेंड्स, ये जब सेल में से हम लोग ये वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो यहाँ कंट्रीब्यूशन 14 लाख, इधर 38 लाख, ये 32,05,440, और ये मैंने इनका सबका टोटल लगाया। इंडिविजुअली लेस करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन 84,05,440 आ जाएगा। इसके बाद फिक्स कॉस्ट हम इंडिविजुअली लेस नहीं करेंगे, केवल डायरेक्ट टोटल में से लेस करेंगे, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को हम लोग मान के चलते हैं पीरियड कॉस्ट। और इस क्वेश्चन में हमें फिक्स कॉस्ट जो गिवन है, अगर हम देख पाते हैं तो ये 4 लाख है। आइए इस 4 लाख को यहाँ से लेस करते हैं, तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है दैट इज़ 80 लाख, और ये हमारे पास हो जाएगा 440, 80,05,440, 80,05,440, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बनानी होती है अगर क्वेश्चन आता है की फैक्टर और प्रोडक्ट मिक्स की बात करता है। और यहाँ पर हमारे पास की फैक्टर क्वांटिटी में था, दैट्स वाई हमने कंट्रीब्यूशन पर केजी निकाला रैंकिंग के लिए। फिर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपने पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, फिर एक प्रोडक्ट के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है उसके हिसाब से आपने 1 किलो से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यहाँ 25, यहाँ 38 और यहाँ 22.26, और जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सबसे पहले आपने उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश की। फिर आपने सेकंड प्रायोरिटी इसको दी, थर्ड प्रायोरिटी इसको दी, और इस तरह से आपने रॉ मटेरियल डिवाइड करके आउटपुट तैयार किया, और ये फाइनल आपका सेल प्लान बना, जिससे कि कंपनी को 80,05,440 का प्रॉफिट होगा। सो दिस वाज वन ऑफ द वे। और आप चाहें इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उस केस में हम यहाँ पे सेल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन। कैसे? जैसे कि आप ये स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने पहले सेल लिखा, फिर इंडिविजुअली लेस किया, और यहाँ पर भी हमने जब डिटेल स्टेटमेंट बनाई तो सेल और फिर ये सारे इंडिविजुअली कॉस्ट लेस की।
आप चाहें तो इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन। उस केस में ये 14 लाख कैसे आएगा आपके पास, देखिए जरा, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पर 200, और आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस करने 7000, तो 7000 को 200 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन यही 14 लाख आएगा। इसी तरह से सेकंड प्रोडक्ट का 380 मल्टीप्लाई बाय 10,000 करेंगे तो 38 लाख, और थर्ड प्रोडक्ट 11,520 और उसका कंट्रीब्यूशन है 278.25, तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। और इस तरह से आप टोटल लिखेंगे और लेस फिक्स कॉस्ट करके ये आंसर निकाल देंगे। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा, अगर हम डायरेक्ट यहाँ कंट्रीब्यूशन से स्टेटमेंट बना के फिक्स कॉस्ट लेस करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं, हमने इतना सारा काम क्यों किया? तो मैं आपसे ये कहूँगा, हमारे जो एग्ज़ाम का नाम है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब हम CMA का पेपर देते हैं, इसी तरह से CA फाइनल का भी देते हैं, तो जब भी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मैनेजमेंट पूरी डिटेल्स, पूरे फैक्ट्स डिटेल में चाह रहा होता है, तो मैनेजमेंट की सुटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम उसी हिसाब से काम करते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, मैंने पूरी डिटेल स्टेटमेंट बनाई, और आप चाहें तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से भी इसको स्टार्ट करके एंड कर सकते हैं। बट अगर आप एग्जाम में लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, टाइम आपके पास बहुत कम है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप इसको कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करें, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन आधा रह जाएगा। बट अगर आप इसको एग्जाम में स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे हैं तो बेटर है कि आप बेटर प्रेजेंटेशन दें। इस केस में एग्जामिनर 1, 2 नहीं तो मैक्सिमम 3 मार्क्स काटेगा, बट 3 मार्क्स नहीं, मैं तो ये कहूँगा 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर हमें एग्जाम में एक एग्जाम्शन लेनी हो या फिर एक नंबर भी पास और फेल होने का डिसीजन ले सकता है, यानी कि आपको पास होना है फेल होना है, 1 मार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज व्हेन की फैक्टर वाज रॉ मटेरियल एंड की फैक्टर वाज गिवन इन क्वांटिटी। तो नेक्स्ट केस हम देखेंगे जब की फैक्टर हमारे पास रुपीज़ में होगा और मटेरियल का ही मैं केस लूँगा एक प्रॉब्लम के थ्रू। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।